السلام علیکم، سرس نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ اے اللہ، مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے اور تو ہی بہترین جائے پناہ ہے۔ اپنے آخری نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں آفات اور مشکلات سے نجات دے۔ آمین ثم آمین۔ ایک ہی دن میں 2 استعفے آ گئے۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا اور تانیہ ادروس نے استعفیٰ دے دیا۔ دونوں عہدیداروں کے استعفے منظور کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق استعفے عمران خان کے مطالبے پر دیے گئے۔ استعفے کے بعد پھر استعفیٰ، سیاسی افق پر پھر تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ دونوں معاونین خصوصی نے کردار پر منفی بحث اور تنقید کو استعفے کی وجہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ عمران خان کی دعوت پر پاکستان آیا تھا، دل جمی سے کام کیا، مشکل وقت میں ملک کی خدمت کا اعزاز حاصل ہوا۔ خوشی ہے کہ ایسے وقت میں عہدہ چھوڑ رہا ہوں جب کورونا کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ ڈاکٹر تانیہ ادروس کہتی ہیں ان کی دوہری شہریت ریاست پر تنقید کا باعث بنی۔ ڈیجیٹل پاکستان کا مقصد متاثر ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر تانیہ ادروس نے استعفیٰ دیا نہیں بلکہ ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا ہے، جس کی وجہ ڈیجیٹل پاکستان میں ہونے والی بدعنوانی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تانیہ ادروس سوالات کی تسلی بخش جوابات نہ دے سکی تھی۔ اپوزیشن کا پریشر، پاک پتن کی اپنی فال بالنگ، ایک بال پر اپنی ہی وکٹیں گرا دی۔ وزیر اعظم کے 2 معاون خصوصی یکے بعد دیگرے مستعفی ہو گئے۔ تانیہ ادروس اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا۔ دونوں معاونین کا کہنا ہے کہ عوام کے بہترین مفاد میں استعفیٰ دیا۔ سیاسی پنڈت شیخ رشید کی پیش گوئی کو یاد کرنے لگے۔ وزیر اعظم عمران خان کے عاشق، سیاسی نجومی اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا ماننا ہے کہ جولائی میں جھاڑو پھرے گا، عید سے پہلے قربانی ہوگی۔ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی۔ ایک طرف اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف صف بندی کر رہی ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم کی شطرنج کے مہرے گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کے لیے معاون خصوصی تانیہ ادروس یہ کہتے ہوئے مستعفی ہو گئیں کہ ان کی دوہری شہریت پر سوالات اٹھائے گئے۔ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ان پر ہونے والی تنقید ڈیجیٹل پاکستان ویژن پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کورونا وبا مہم کے خلاف وزیر اعظم کی ٹیم کے سرخیل معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی استعفے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر عالمی ادارہ صحت کو چھوڑ کر پاکستان آئے تھے اور انہوں نے اس ملک کے لیے محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ یوں اچانک کپتان کے کھلاڑیوں کا ہرٹ ریٹائرڈ ہونا سیاست کی شطرنج پر نظر رکھنے والوں کو بھی حیران سر جوڑے بیٹھا ہے کہ کیا ایک بال پر 2 وکٹیں گرانے والے کپتان کا معاونین کے احساس ظاہر کرنے والا باؤنسر اپنے ہی کھلاڑی برداشت نہیں کر پائے اور پویلین میں واپس جانا شروع ہو گئے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سے بھی ملاقات کی تھی اور عید کے بعد بڑی مہم کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کیا تھا، اور آج وزیر اعظم کے 2 اہم معاون خصوصی مستعفی ہو گئے۔ سیاست کی چالوں پر نظر رکھنے والے حیران ہیں کہ اپوزیشن کے دباؤ کے سامنے کیا حکومتی محل کے ستون سرکنے شروع ہو گئے ہیں یا سیاست کے نجومی ہونے کے دعوے دار شیخ رشید کی پیشن گوئیوں کے سچ ثابت ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ریفرنس کے فیصلوں میں تاخیر کے ذمہ دار نیب کو ہی قرار دے دیا۔ لاکھڑا پاور پلانٹ کیس میں جاری حکم میں کہا گیا کہ سیکریٹری قانون نے 120 نئی عدالتوں کی کابینہ سے منظوری لے کر ججز تعیناتی کا بیان دیا۔ نیب اپنے رولز مرتب کر کے آئندہ سماعت پر پیش کرے۔ عدالت نے چیئرمین نیب سے بھی تحریری جواب طلب کر لیا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم نامے میں نیب کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ نیب کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ ہی انکوائری کا تجربہ۔ نیب میں تحقیقات کا جائزہ لینے کا کوئی پیمانہ نہیں، نقائص پر مبنی تحقیقات کو ریفرنس میں بدل دیا جاتا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ فیصلوں میں تاخیر کی وجہ نیب آفیشل اور پراسیکیوشن ٹیم ہے۔ چیئرمین نیب کو مرتب ریفرنس کا خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین نیب اگر سمجھے کہ ان کی ٹیم کے تجربے کا ایشو ہے تو تبدیلی کر دیں۔ نیب 30 روز میں ریفرنس پر فیصلے کو یقینی بنائے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سیکریٹری قانون نے 120 نئی عدالتوں کی کابینہ سے منظوری لے کر ججز کی تعیناتی کا بیان دیا۔ نئی احتساب عدالتوں میں ججز نیب ریفرنس پر جلد فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے کابینہ سے 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری لینے کی ہدایت کی تھی۔ دوران سماعت پراسیکیوٹر جنرل نیب کی جانب سے نیب کے رولز نہ بننے کا انکشاف کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان سے فواد چودھری اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ملاقات کی ہے۔ اس دوران سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے فواد چودھری اور گورنر سندھ نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
दुश्मनों का मुहाफिजों पर वार। चारसद्दा के पुलिस स्टेशन नस्ता की हुदूद में मुल्जिमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग से ASI सिराज खान और कांस्टेबल अकराम खान शहीद हो गए। दुश्मनों का मुहाफिजों पर वार। चारसद्दा पुलिस स्टेशन नस्ता की हुदूद में पुलिस पर फायरिंग की गई। तफसीलात जानेंगे सिराज अली से, बताइएगा सिराज। जी बिल्कुल, फायरिंग का ये वाकया पुलिस स्टेशन नस्ता के हुदूद तुरलांदी में पेश आया है, जहां पर दो फरीकैन मलिक जाहिर और किफायतुल्लाह के दरमियान गहरे तनाज़ा पर फायरिंग का सिलसिला जारी था। तो इस वक्त पुलिस को इत्तला मिली, जहां पर पुलिस मौका पर पहुंची तो वहां पर मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की, जिससे एक पुलिस एहलकार सिराज खान जो ASI है वो मौका पर शहीद हुआ, जबकि दूसरा कांस्टेबल इकराम खान शदीद जख्मी हुआ। जो ही दोनों शहीद और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, तो वहां पर इकराम कांस्टेबल जो जख्मी था उसने भी शहादत नोश की। और यूं इस वाकये में जो है दो पुलिस। सही, शुक्रिया सिराज। रावलपिंडी में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ एक्शन। कंटोनमेंट बोर्ड की कार्रवाई जारी है। मुतादिद बकरों को जब्त कर लिया गया है। जब्त किए गए बकरे कहां गए, अमला लाइल्म है। ऑपरेशन मिस्ट्रियाल रोड, रिंग रोड, ढोक सैयदा के इलाकों में किया गया है। रावलपिंडी में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ एक्शन। कंटोनमेंट बोर्ड की कार्रवाई। मुतादिद बकरे जब्त किए गए। जब्त किए गए बकरे कहां गए, अमला भी लाइल्म है। यह ऑपरेशन मिस्ट्रियाल रोड, रिंग रोड, ढोक सैयदा के इलाकों में हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सोहेल राजा से। जी सोहेल। जी बिल्कुल, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है, जबकि व्यापारियों के दर्जनों बकरे जो है वो गायब होने का इंकशाफ हुआ है। जब व्यापारियों का कहना है कि हमें गैर कानूनी मवेशी मंडी के नाम पर तंग किया जा रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड और चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड जो है गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। ढोक सईदा और इसमें टेंज बाटा और जबकि रेंज रोड और बकरा मंडी के इलाके शामिल है, जहाँ पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। मवेशी जो जब्त किए गए हैं वो अभी तक वापस नहीं किए गए। दूसरी जानिब व्यापारियों की तरफ से इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं कि हमारे मवेशियों को भूखा प्यासा रखा जाता है और इस वजह से हमें बड़ा नुकसान का खदशा है, जबकि हमारे बरामद किए गए जानवर भी की तादाद भी पूरी नहीं है। मुबीना तौर पर जानवरों को गायब करने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें बकरे भी शामिल है और बैल भी शामिल है। और अब तक कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी ने जो है वो 3 लाख से ज्यादा जो है जुर्माने किए हैं, जबकि तकरीबन 97 से ज्यादा जो है बकरे अपनी तहवील में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल राजा। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ईद से कबल पार्लियामेंट का पारा हाई हो गया। साबिक और मौजूदा वजीर खारजा आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ ने एक जानिब तस्लीम किया कि वो भी रंगबाजी करते हैं, तो दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को बड़ा रंगबाज करार दे दिया। जवाब में जब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खिताब के लिए आई तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और नशिस्तों से उठ खड़े हुए। पार्लियामेंट में वो हुल्लड़बाजी हुई कि कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने हस्बे रिवायत डेस्क संभाला तो हुक्मरान जमात को आड़े हाथों लिया। ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान जहां अपोजिशन बेंचों से डेस्क बचाने की आवाजें बुलंद हुई तो वहां हुकूमती बेंचों पर सन्नाटा छाया रहा। उन्होंने खिताब के दौरान तस्लीम किया कि वो भी अपने दौर में रंगबाजी करते रहे हैं, लेकिन इनका कहना था कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बड़े ही रंगबाज हैं। वजीर खारजा मोहतरम जो है कल अपनी तकरीर ना करते और मुझे उनके जवाब में या मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं अपोजिशन में उनको जवाब जो है ना देना पड़ता। उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो हैं, जो एक डिसेंट मुआशरे में जिनका एहतराम किया जाता है, वो तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वजीर खारजा ने नैब बिल पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम हदें पार की। तासुर दिया गया कि अपोजिशन नैब ज़दा है और कानून में खराबी की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा जन्नत का टुकड़ा और वहाँ फरिश्ते रहते हैं, सब ईमानदार हैं। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत कवानीन बनाए वो खुद उन कवानीन का निशाना बने। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं। इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया सारे केपी में। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है।
ख्वाजा आसिफ का कहना था इनकी सफों में महा करप्ट लोग हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। किसी को BRT, मालम जब्बा और किसी को बिलियन ट्री में इस्तिस्ना दिया हुआ है। ख्वाजा आसिफ के जवाब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए तो अपोजिशन ने इनकी एक ना सुनी और शोर शराबा शुरू कर दिया। यहाँ फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर खातान भी नहीं बोलेगा, राजा भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। फिर अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। 5 मिनट बात करूंगा और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलेगा ये, कोई नहीं बोलेगा ये। शाह महमूद कुरैशी ने बोलने की कई कोशिशें की। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी अराकीन को खामोश कराया, लेकिन इस दौरान ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों पर अराकीन खड़े होकर शोर मचाते दिखाई दिए। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, आप तमाम बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे, बर्दाश्त का मुजाहरा करें हौसले के साथ। इस दौरान स्पीकर ने इजलास मुख्तसर वक्त के लिए मुलतवी कर दिया, जिसके बाद फिर वही सिलसिला जारी रहा। लेकिन हुकूमत ने कौमी असेंबली में शोर शराबे के बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सफरे हज का आगाज हो गया। आज़मीन के काफिले मक्का से मिना पहुंच गए हैं। मैदान अरफात से हज का खुतबा अल्लामा अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मुनी देंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मंजूरी दे दी। उर्दू समती 10 जबानों में खुतबे का तर्जुमा भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात के साथ मनासिक हज का आगाज हो गया। आज़मीन हज ने करंटीना खत्म करके एहराम की हालत में तवाफ किया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने फराइज हज की सआदत हासिल करने वाले खुश नसीबों को मक्का मुकरमा के होटल से मिना मुंतकिल किया गया। आज़मीन हज का कारवां सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों और तमाम मुतालिका इदारों के नुमाइंदा एहलकारों के हसार में मक्का से मिना मुंतकिल हुआ। हज करने वालों की बसें 50% गुंजाइश के साथ ही इस्तेमाल की गयी। आज़मीन ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद की। आज़मीन हज बुध 8 ज़िलहज्जा को ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे और जुमेरात को 9 ज़िलहज्जा को फजर की नमाज अदा करके हज का रुकन आज़म वकूफ अदा करने के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। यौम अरफा के लिए मस्जिद नमरा में भी आज़मीन के लिए मखसूस निशान लगा दिए गए हैं। इस साल फरीज़ा हज अदा करने वालों का ताल्लुक 160 मुल्कों से है। 70% गैर मुल्की दुनिया इस्लाम के तमाम इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कराची में कुर्बानी के जानवरों की मवेशी मंडियों से घरों पर आमद का सिलसिला जारी है। शहरियों ने जानवरों को ठहराने के लिए खुसूसी इंतजाम कर लिए। बड़े हो या बच्चे सभी उनकी खिदमत में मसरूफ दिखाई देते। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, अब ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब आ गई है और कराची के शहरियों की कोशिश है कि वो जो कुर्बानी के जानवर हैं वो फौरी तौर पर खरीद लिए जाएं और कराची में अब जगह जगह जो है जो कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं खरीद कर उनके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, टेंट लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर भी एक मैं टेंट में मौजूद हूँ। गुलिस्तान जौहर का ये इलाका है, यहाँ पर भी जो है काफ़ी जानवर जो है लोग शहरी लेकर आए हैं और इनके लिए जो है न सिर्फ टेंट का इंतजाम किया गया है बल्कि चारे और दीगर चीज़ों का भी जो है वो इंतजाम किए गए हैं। ये ऐसे शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, ये आपका जानवर किसका है? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मेरे हैं। कितने के लेके आए हैं? ये लेके आया हूँ तकरीबन 4.25 लाख रुपए के दो। अच्छा ये बताएं, गुज़श्ता साल के मुकाबले महंगे हैं जानवर, सस्ते हैं? हाँ, इस साल थोड़ा सा महंगे हैं क्योंकि लाजिमी था, आपको पता है कोरोना का मसला भी, टैक्स भी बहुत सारे लिए गए हैं, तो इस बार मंडी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये शहरी मेरे साथ मौजूद थे। जानवरों के आने की सबसे ज्यादा खुशी जो है वो बच्चों को होती है। बच्चे भी। शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। बात करेंगे खेल और खिलाड़ी की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज की तारीख में आज के दिन को कैसे फरामोश किया जा सकता है। 1996 में आज के रोज स्पिनर मुश्ताक अहमद ने बरतानवी टीम की धज्जियां उड़ाई और लॉर्ड्स के मैदान में पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। मुश्ताक अहमद खुद भी अपनी उस परफॉर्मेंस को करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस करार देते हैं। Really is working now for Mushtaq. Bowling. Good quicker ball. Yes, giving him LBW. Well, it looked as though it got a bit of bounce as well as being a fast. बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।